کیونکہ دین میں صرف مردوں کی حصہ داری نہیں ہے، بلکہ مردوں سے زیادہ حصہ داری خدمات عورتوں کی ہے، تھی، رہے گی۔ لہذا میں نے قرآن مجید کی اسی آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے جس آیت کے ذیل میں مردوں کے درمیان میں گفتگو کرتا تھا۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ جو ضرورت مردوں کو ہے اسی چیز کی ضرورت عورتوں کو، اور قرآن کی آیت میں خطاب میں کوئی فرق نہیں ہے کہ یہ آیت مردوں سے خطاب کر رہی ہے، آیت عورتوں سے نہیں، سب کا خطاب انسانیت سے ہے، اور انسانیت کی گاڑی دو پہیے سے چلتی ہے، ایک پہیے کا نام مرد ہے اور دوسرے پہیے کا نام عورت۔ اگر خدا نہ کردہ کوئی ایک پہیہ ڈیمیج ہو جائے تو گاڑی آگے نہیں بڑھے گی، چاہے ادھر والا چاہے ادھر والا۔ پوری تعلیمات اسلام، قرآن، کربلا، جو کچھ بھی آپ دیکھیں، اور یہی دین اسلام کا ایک امتیاز ہے، جہاں تمام مذاہب میں آپ دیکھیں، اگر پڑھیں غور کریں، کیونکہ میرا موضوع نہیں، میں ادھر نہیں جانا چاہتا، چھیڑنا بھی نہیں چاہتا۔ خواتین کو محروم رکھا گیا، لیکن اسلام کے کسی حکم میں عورتوں کو محروم نہیں رکھا گیا۔ نماز مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، روزہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے بھی، حج مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی، تلاوت قرآن مجید مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، زیارت ائمہ معصومین، کوئی فرق ہے؟ کہیں فرق ہے محسوس کر رہے ہیں؟ کوئی فرق ہے؟ عزاداری مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ عزاداری مردوں کی بھی ضرورت ہے، عورتوں کی بھی ضرورت ہے۔ عزاداری سے مرد بھی درس لیں گے، عورتیں بھی درس لیں گی۔ حسینیت میں مردوں کی بھی خدمات ہے، عورتوں کی بھی خدمات ہے، بلکہ صرف خدمات ہی نہیں ہے، صرف حصہ داری نہیں ہے، بلکہ ہر کامیاب انسان کے پیچھے، ہر کامیاب مرد کے پیچھے، ہر کامیاب انسان کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا رول ضرور رہا ہے۔ یعنی مرد کی کامیابی کس پہ ڈیپینڈ ہے؟ عورت پر۔ ہر کامیاب مرد کامیاب ہی نہیں ہوتا، عجیب اللہ نے نیچر رکھا ہے۔ چونکہ اگر کامیابی مرد کی کامیابی مرد پہ ڈیپینڈ ہو جاتی تو شاید مرد عورتوں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا تو صحیح مرد ہو، ٹھیک ہے تم مرد ہو، لیکن یاد رکھنا تمہاری کامیابی عورتوں کی محنت کا نتیجہ ہوگی۔ اب پوری تاریخ میرے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں ایک ایک موقع آپ کی خدمت میں پیش کرتا، بس اشارہ کرتا جاؤں گا، آپ محسوس کرتے جائیے کہ ذہن میں اس کی تفسیر کرتے جائیے، ایکسپلین کیجیے گا۔ سرور کائنات سید المرسلین اللہم صلی علی اتنا بڑا مشن لے کے آئے اور کامیاب ہوئے، لیکن اس کامیابی کے پیچھے رول کس کا تھا؟ اگر جناب خدیجہ جیسی عورت کا سپورٹ نبی کریم کو نہ ملتا تو کبھی نبی کریم کامیاب نہ ہوتے، یا اس طرح سے کامیابی نہ ہوتی۔ سید المرسلین کی کامیابی میں کس کا رول؟ جناب خدیجہ۔ میں نے وقت میں گنجائش نہیں کی، ایک بہت لطف آتا، بہت عرب لگتا ہے، یہ اشرے پڑھے جاتے ہیں اس پہ۔ جناب نبی کریم کی کامیابی میں کس کا رول؟
जनाब खदीजा नहीं होती? हर मर्द, जो भी मर्द जहाँ पे भी कामयाब है, चाहे एजुकेशन में कामयाब हो, दीनदारी में कामयाब हो, इकोनॉमी में कामयाब हो, मर्द जहाँ भी कामयाब होगा उसके पीछे किसी न किसी खातून की खिदमत होगी। वो बात अलग है, हमारी नज़र कामयाब मर्द पे पड़ती है, उस खातून की तरफ हमारी नज़र नहीं जाती जिसने कामयाबी से हमकनार किया है। आप आके करबला उठा के देख लीजिए साहब, करबला उठा के देख लीजिए, पूरी करबला। अंसार इमाम हुसैन कामयाब है, औलाद इमाम हुसैन कामयाब है, हत्ता इमाम हुसैन मकसद में कामयाब है। लेकिन इस कामयाबी के पीछे राज क्या है? इमाम हुसैन को ज़ैनब जैसी बहन मिली, हुसैनी मिशन कामयाब हुआ। अंसार में भी देख लीजिए, कहीं माहों ने आमादा किया, कहीं बहनों ने आमादा किया, कहीं बीवियों ने आमादा किया। लिहाजा ये मर्द लोग न सोचें कि जो कुछ है हमारी ज़ात से है, हर कामयाबी औरत के ज़ात से है। अगर औरत अपना रोल अदा न करे तो मर्द चाहे बाप की सूरत में हो, शौहर की सूरत में हो, भाई की सूरत में हो, बेटे की सूरत में हो, कभी कामयाब नहीं हो सकता। लिहाजा मर्दों की जिम्मेदारी है ख़वातीन की इज्जत करें, उनकी खिदमत की कदर करें, और ख़वातीन की जिम्मेदारी है अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपनी खिदमत को बेहतर अंजाम दें। करबला से वाबस्ता 5 चीज़ें हैं ना, कल आशूर है, 5 चीज़ें हैं ना। तारीख़ करबला, तारीख़ आशूरा, आशूर में क्या हुआ, क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। तारीख़ आशूरा ये किताबी बातें हैं। मसाइब आशूरा, मक्तल में क्या हुआ। आमाल आशूरा, जो कल इंशाल्लाह, इसमें भी कोई फ़र्क है कि नहीं? औरतें करेंगी, मर्द नहीं करेंगे, मर्द करेंगे, औरतें नहीं, कोई फ़र्क नहीं। औरतें भी आमाल आशूरा अंजाम देंगी, मर्द भी। तारीख़ आशूरा, मसाइब आशूरा, आमाल आशूरा, आदाब आशूरा। आदाब आशूरा भी आप जानते हैं, यानी आशूर के दिन क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है ना, इसे कहते हैं आदाब आशूरा। एक और चीज़ है जिसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं होती, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हम तारीख़ आशूर को भी देख लेते हैं। तारीख़ आशूरा, मसाइब पढ़ के, रो के, रुला के, अभी मरसिया खानी हुई, मसाइब आशूरा। आमाल आशूरा भी हम अंजाम देते हैं, आदाब आशूरा भी अंजाम देते हैं, लेकिन आशूरा की का नतीजा रह जाता है जिसे कहते हैं तहजीब आशूरा। और याद रखें, जब ये 5 चीज़ मुकम्मल नहीं होती तो आशूर मुकम्मल नहीं होती। आदाब क्या करना है, तहजीब आशूरा, और यही हमारी मजलिसों का नतीजा है, हमारी अज़ा का नतीजा है। हमारे अंदर तहजीब आशूरा पैदा हुई या नहीं। मजलिस करें, बानियाने फर्श अज़ा फर्श बिछाएं, मजलिस हो जाए, उसके बाद तज्ज़िया करें अपनी मजलिसों का। आया मजलिस के इख्तिताम के बाद हमारी कौम में, हमारी बच्चियों में, हमारी ख़वातीन में, हमारी माँ बहनों में, हमारे जवानों में, हमारे बच्चों में तहजीब आशूरा आई कि नहीं आई। तहजीब आशूरा आई कि नहीं, ये बानियाने अज़ा की जिम्मेदारी बनती है। बैठे अब्बास साहब या तमाम लोग बैठे, लिहाजा फर्श अज़ा बिछाने से पहले तारीख़ आशूरा नहीं, किताब है, वो किताब में महफूज रहेगी। मसाइब आशूरा सिर्फ मसाइब के टाइम, हर वक्त तो मसाइब नहीं होगा ना, तवज्जो है ना, हर वक्त तो मसाइब नहीं होगा ना, पढ़ते हर वक्त मसाइब, सुनते हैं नहीं सुनते। मसाइब की एक लिमिट है, 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, उसके बाद अपनी अपनी ज़िंदगी है।
یعنی اس کا مطلب ہماری پوری زندگی سے وابستہ مصائب نہیں ہے. توجہ فرمائیے گا. تاریخ عاشورہ کتاب میں محدود، مصائب ایک خاص وقت کے لیے مخصوص، اعمال عاشورہ روزے عاشورہ سے مخصوص، نہ عاشورہ سے پہلے نہ عاشورہ کے بعد. آداب عاشورہ میں ایک منزل پہ لانا چاہتا ہوں، بڑی توجہ فرمائیں کہ ماں بہنیں. آداب عاشورہ عاشورہ سے مخصوص، عاشور کے دن ہمیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیسے کرنا ہے. آستینیں پلٹ لینی ہے، گریبان کھول لینا ہے، برہنہ سر رہنا ہے، ہنسنا نہیں ہے، مذاق نہیں کرنا، اسے کہتے ہیں آداب عاشورہ. آداب عاشورہ بھی کس دن کس کے لیے مخصوص؟ عاشور سے مخصوص، نہ پہلے نہ بعد. بس ایک چیز بچتی ہے جو پورے سال ہمارے ساتھ رہتی ہے، خوشی میں بھی رہتی ہے، غم میں بھی رہتی ہے. اس چیز کا نام ہے تہذیب عاشورہ. ایک سلوات بھیج دے. یہ چاروں چیز بیک گراؤنڈ ہے، مقدمہ سازی ہے، تمہید ہے. کس چیز کی؟ عزادار آئے، حسینی آئے، حسین کے چاہنے والے فرش عزا پر آئے، تاریخ عاشورہ کے بہانے، مصائب عاشورہ کے بہانے کیا لے کے جائیں؟ تہذیب عاشورہ. چاہے جتنا اچھا حصہ بانٹیے آپ کی زبان میں، چاہے جتنا اچھا تبرک بانٹیے، اگر تہذیب عاشورہ نہیں بانٹی تو کچھ نہیں بانٹا. اگر جانے والے کو تہذیب عاشورہ نہ ملی تو کچھ نہ ملا. آپ یہ دیکھیں کہ اختلاف، یہ نفسا نفسی، یہ کشیدگی، یہ جھگڑے محرم میں کس چیز کی دلیل ہے؟ کیا تاریخ نہیں جانتے؟ تاریخ بھی جانتے ہیں. کیا مصائب نہیں جانتے؟ مصائب عاشورہ نہیں، مصائب عاشورہ بھی جانتے ہیں. پھر کیا نہیں جانتے؟ تہذیب عاشورہ نہیں جانتے. مرثیہ کون پڑھے گا، کون نہیں پڑھے گا، ڈائری کس کے ہاتھ پہ رہے گی، کس کے ہاتھ میں نہیں رہے گی. پھر میں کہہ رہا ہوں، میں یہاں کا ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، میں قوم کو ٹارگٹ کر رہا ہوں. یہ جھگڑا کیوں؟ یہ نفسی نفسہ کیوں؟ کیونکہ ہم سب جانتے ہیں، نہیں جانتے تو تہذیب عاشورہ. 90 میں جھگڑا، پہلے ہم پڑھیں گے. پہلے کیا فرق پڑتا ہے؟ عاشورہ کیا سکھاتی ہے؟ بھائی ٹھیک ہے، ہم پہلے کھڑے ہو گئے تو تمہیں پڑھنا ہو بھائی، ہم بعد میں پڑھ لیں گے. اگر تہذیب عاشورہ ہے تو نا، ماتم کے حلقے میں آ گئے، ہم کھڑے ہو گئے تھے، دوسرا جذبہ رکھتا ہے، ماتم کرنا چاہتا ہے، ہم کنارے ہو جائیں. آؤ بھائی تم کھڑے ہو. یہ ہے تہذیب عاشورہ. یاد رکھیے دوستوں، آپ چاروں عمل کر لیجئے گا، چاروں عمل کر لیجئے گا. میں بڑی ذمہ داری سے بات کہتا ہوں صاحب، چاروں عمل کر لیجئے گا. اگر تہذیب عاشورہ نہیں آئی تو آپ میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. اور وہ مجلس جس میں کوئی تبدیلی نہ آئے حسین کو پسند نہیں ہے. وہ مجلس جو شروع ہو اور ختم ہو جائے اور آنے والے میں کوئی تبدیلی نہ آئے تو وہ مجلس امام حسین کو پسند نہیں ہے. اور جو مجلس امام حسین کو پسند نہ ہو وہ حسینی مجلس نہیں ہے، رسم کی مجلس ہے. اور جو امام حسین کو پسند نہیں، آپ اسے ڈھوتے پھریے، یہ رسم ہے، ہوتی تھی کرتے رہیے. لیکن اگر چاہتے حسینی مجلس ہو تو تہذیب عاشورہ کو زندہ کیجیے. تہذیب عاشورہ ہمیں انسان بناتی ہے. ہمیں گھر میں شوہر بیوی کے ساتھ کیسے سلوک کرے، کون سکھاتا ہے؟ آداب عاشورہ، مصائب عاشورہ، تاریخ عاشورہ نہیں، تہذیب عاشورہ. بیوی شوہر کی کیسے خدمت کرے، کون سکھاتا ہے؟ تہذیب عاشورہ. باپ بیٹے کے پہ کیسے شفقت کرے، کیسے تربیت کرے، کون چیز سکھاتی ہے؟ تہذیب عاشورہ. بیٹا باپ کی کیسے عزت کرے، یہ چیز کون سکھاتی ہے؟ آزادار کی عزت کرے، حسینی کا احترام کرے، ایک دوسرے سے محبت کرے، کون سی چیز سکھاتی ہے؟
तहजीब आशूरा। जब मजलिसें करिए कोशिश करिए तहजीब आशूरा बांटिए। अपनी मजलिसों में किस चीज़ को बांटिए? हिस्सा बांटिए चाहे ना बांटिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता साहब, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मुझे बता दीजिए एक बिस्कुट खा के आपका क्या भला हो जाएगा? एक नमकीन खा के आपका क्या भला हो जाएगा? कोई भला होगा? लेकिन अगर तहजीब करबला मिली तो भला होगा, नहीं मिली तो भला नहीं होगा। तो अपनी मजलिसों में तहजीब करबला बांटिए, हमारे घर जन्नत बन जाएंगे, हमारे घर जन्नत बन जाएंगे। तहजीब करबला, तहजीब करबला कहाँ से बटेगी? फर्शी अज़ा से। बस मजलिस का मकसद क्या है समझ गए? बस पर्दा भी आवाज़ जा रही होगी। मजलिस का मकसद, मरसिए का मकसद, नफ़े का, मातम का मकसद क्या है? तहजीब करबला बांटनी है, एक दूसरे को देनी है ना। देखिए साहब, जब पेपर होता है ना, तैयारी होती है ना, तो सब बैठ के सॉल्व करते हैं ना। ये सवाल हमने सॉल्व कर लिया, ये आप करिए, ये करिए। जो जिसके पास सॉल्व हो जाता है दूसरे को देते हैं। तो आइए मिलजुल के मसले को हल करें। कौम में मसले पैदा ना कीजिए, कौम के मसले को हल कीजिए। तहजीब करबला सिखाती है, तहजीब करबला जोड़ती है, तहजीब करबला तोड़ती नहीं है। अगर हम टूट रहे हैं तो इसका मतलब हमारे पास सब कुछ है, तहजीब करबला नहीं है। और तहजीब करबला नहीं है तो कुछ नहीं है। बिला तकल्लुफ, न करबला तकल्लुफ करती है, न मैं तकल्लुफ करता हूँ बयान में। सब कुछ हाथ आया, तहजीब करबला नहीं आई। तो तहजीब करबला क्या क्या है मैं आपकी खिदमत में बयान करता रहूँ, कर रहा हूँ जहाँ तक हो सका। तो मजलिसों का मकसद, चाहे मर्द हजरातों बैठे हैं जो हाजरीन गायबीन को खबर करेंगे कि मजलिस हुसैनी का मकसद क्या है? तहजीब करबला लेना। ख़वातीन हज़रात की भी जिम्मेदारी है। जो अहले मिंबर है, मिंबर पे आते हैं, चाहे वो ख़तीब हो, ख़तीबा हो, ज़ाकिर हो, ज़ाकिरा हो, आलिम हो, आलिमा हो, मेरी सबसे मुअद्दिबाना गुजारिश है, नुक्ते मत बांटिए, लफाजी मत कीजिए। चीखने की ज़रूरत नहीं है, खामखा की लफाजी करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे सीधे 2-2, 4 के अंदाज में तहजीब आशूरा बांटिए। और याद रखिए, कौम इतनी मोहब्बत देगी, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, कई साल का वादा हो जाएगा। ये न सोचिए कि नुक्ता नहीं पढ़ेंगे तो चलेंगे नहीं। ये मोमिनीन चलाने वाले नहीं हैं, हुसैन चलाते हैं। एक सलवात भेज दे। मोमिनीन को खुश करने के लिए नुक्ते घड़िए नहीं, कभी झूठा, कभी सच्चा, कभी इधर का उधर का। एक साहब बड़ी मजबूरी हम लोगों के साथ होती साहब, मजलिस ना जाए तो मोमिनीन कहते देखिए दूसरे मजलिस में आए नहीं। अगर मजलिस में आ गए तो साहब क्या हो रहा है? बहुत से नुकात हो रहे, नुकात पढ़े गया, ऐसे नुक्ता पढ़ा गया चूंकि मेरे से समझ में आ रहा है तो इसमें तो खुश है, इसमें कुछ है ही नहीं साहब। हम मोमिनी बाबा बाबा नारे हैदरी, सब ना हाथ उठा रहे। अगर हम हाथ ना उठाएं तो मजबूरी कहते देखिए अजीब है साहब। हाथ उठाते हैं तो ताईद हासिल हो जाती है। क्या करें क्या न करें। तो हमारे मोमिनीन बहुत सीधे बेचारे, पहले मेंबर बकौल कल्बे सादिक साहब के मरहूम के, कि अगर हमारा मेंबर अपनी जिम्मेदारी पूरी करता, यानी अहले मेंबर अगर जिम्मेदारी पूरी करते, कौम में ये तहजीब करबला जिंदा हो जाती। ये लफ्ज़ मेरा है, तहजीब करबला यानी जिंदा हो जाती है। और याद रखें, करबला अपनी तहजीब से पहचानी जाती है, अपनी तारीख से नहीं, अपने अमाल से नहीं, तहजीब से पहचानी जाती है। करबला की तहजीब जिंदा करें। और मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, बहुत दमन वक्त में गुंजाइश नहीं है, मेरी नज़र बहरहाल कभी बयान की तरफ होती, कभी आपके चेहरों में, कभी घड़ी पर। हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का रोल होता है। लिहाजा मर्द हज़रात से गुजारिश है, ख़वातीन की इज्जत किया करें।
कदर किया करें। अगर कामयाब होना है तो अपने घर की औरतों की कदर करें, चाहे माँ की सूरत में हो, चाहे वो बीवी की सूरत में हो, बहन की सूरत में हो, बेटी की सूरत में हो, क्योंकि इनकी खिदमत आपको कामयाब करती है और कभी मोहसिन के एहसान को भुलाया नहीं जाता। कि एक ख़वातीन हजरात की जिम्मेदारी ये है कि अगर कामयाबी आप पर डिपेंड है मर्दों की, तो आप ऐसी खिदमत अंजाम दीजिए कि आपका बाप भी कामयाब रहे, आपका शौहर भी कामयाब हो, आपका भाई भी कामयाब हो, आपका बेटा भी कामयाब हो, गोया पूरा घर कामयाब हो। और याद रखिए, जब कामयाब लोगों का तस्करा होगा तो ख़वातीन का खुद ब खुद तस्करा होगा। कैसी खातून थी, कैसी माएँ थी जिसने बच्चों को ऐसा बनाया। सलवात भेज दे। लिहाजा ख़वातीन अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें, मर्द हज़रात अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें। और आज तहज़ीब आशूरा तोड़ती नहीं है, जोड़ती है, लड़ाती नहीं है, करीब करती है, दिल को पाक करती है। अगर अय्याम अज़ाए हुसैनी में हमारे दिल पाक न हुए, मैं मर्दों से भी कह रहा हूँ, ख़वातीन से भी, ये नहीं सिर्फ टारगेट औरतों के लिए है, अगर हमारा दिल पाक नहीं हुआ तो कभी पाक नहीं हो सकता। गंगा जल भी पाक नहीं कर सकता। पवित्र नहीं होंगे, अपवित्र रह जाएंगे। ये हुसैन, इमाम अली, इमाम हुसैन है, पाक करते हैं। ख़वातीन हजरात, इमाम हुसैन ने ये नहीं फरमाया कि जहाँ अली अकबर होते, तवज्जो फरमाइए, ये इम्तियाज़ है सिर्फ ख़वातीन का। एक इम्तियाज़ कुरान से पढ़ दूँ और फर्श-ए-अज़ा से उठे तो औरतें प्राउड करें, और इसमें सादात और गैर सादात की कोई शर्त नहीं है। तवज्जो फरमाइएगा, फर्श-ए-अज़ा पे कोई इम्तियाज़ नहीं है, ना खुदा के घर में कोई इम्तियाज़ है कि सादात यहाँ बैठेंगे, गैर सादात वहाँ। अगर कोई करता है तो उसका ज़ाती अमल है, और इस अमल पे न खुदा राजी, न रसूल, न आले रसूल। न मस्जिद में कोई इम्तियाज़ है, न फर्श-ए-अज़ा पे कोई इम्तियाज़ है। जो आ गया वो हुसैनी है, बस एक हुसैनी है। हाँ, आप कैसे मरसिया पढ़ना है, कैसे कैसे नवा पढ़ना है, ये अंडरस्टैंडिंग करें, समझौता करें आराम से। लेकिन याद रखें, करबला कुर्बानी है, कुर्बानी देना सिखाती है, कुर्बान करना नहीं सिखाती। आपका दिल चाह रहा था, आपने डायरी खोल ली, अगर एक खातून, एक बच्ची, एक माँ, एक औरत, एक कोई भी नवा पढ़ने के लिए तैयार हो रही थी, डायरी खोल ली, दूसरी खड़ी हो गई, हम पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, रास्ता दे, पीछे दे। बड़े छोटे का ख्याल रखे, छोटे बड़े का ख्याल रखे। वक़्त करूँ के बारकुम वरहमु सगारकुम, इमाम सज्जाद ने फरमाया है, छोटे अपने बड़े का एहतराम करें, बड़े अपने छोटे का एहतराम करें। और याद रखें, करबला तहजीब आशूरा में कोई फ़र्क नहीं है सादात और गैर सादात में। अरे जब ज़ियारत आशूरा बनाई जा रही, कही जा रही है, तो ये नहीं कहा अस्सलाम अलल हुसैन, अस्सलाम अला अली इब्न हुसैन, अस्सलाम अला औलादिल हुसैन। जहाँ औलादिल हुसैन पे सलाम भेजा जा रहा है, वहाँ साबिल हुसैन पे भी सलाम भेजा जा रहा है। हाँ, चूंकि मर्तबे के एतबार से, लेकिन कोई फ़र्क नहीं है। निगाह मासूम में औलाद हुसैन भी काबिल सलाम है, और सारे हुसैन भी। सादात भी अगर हक अदा करते हैं तो काबिल सलाम है, गैर सादात भी अगर अपनी जिम्मेदारी पूरी करते तो अभी काबिल सलाम है। अगर जिम्मेदारी नहीं पूरी करता तो सैयद भी काबिल सलाम नहीं है। यहाँ निस्बतों से होते नहीं मिलते, अमल से मिलता है, किरदार से मिलता है, काम से मिलता है। बस बात, आखिरी बात कह रहा हूँ, कुरान से एक इम्तियाज़, औरतों का इम्तियाज़। कुरान उठा के देखिएगा, फिर इंडेक्स देखिएगा, सूरों की इंडेक्स देखिएगा। सूरह निसा है, सूरह रिजाल नहीं है। 114 सूरों में इस्लाम ने औरतों को कितनी अजमत दी है, कितना मकाम दिया है। औरतें अपनी तकदीर पे नाज करें, प्राउड करें।
114 सूरों में एक सूरा भी रजाल नहीं ना, सूरतुर रजाल। अल्लाह ने इस लायक समझाई नहीं इनको। अपनी कामयाबी पे नाज करते हो ऐ मर्दों, अल्लाह ने इस लायक समझाई नहीं, लेकिन औरतों को इस लायक समझाए। सूरतुन निसा मौजूद है। तो एक इम्तियाज कुरान से, एक इम्तियाज सुन लीजिए। इमाम हुसैन ने ये नहीं फरमाया वो घर मुझे पसंद है जहाँ मेरा अब्बास रहता है, वो घर पसंद है जहाँ अली अकबर रहते हैं, वो घर पसंद है जहाँ कासिम रहते हैं, लेकिन हाँ ये फरमाया है अहब्बु दारन तकून बिहा सकीना व रबाब, वो घर मुझे पसंद है जिस घर में सकीना और रबाब। ये इम्तियाज औरतों को हासिल है किसी, ये कोई मोहब्बत की बुनियाद पे इमाम हुसैन नहीं फरमा रहे कि इमाम हुसैन शौहर है, जनाब रबाब बीवी है। मोहब्बत शौहर बीवी की मोहब्बत में नहीं कह रहा है, किरदार की मोहब्बत की बुनियाद। ये तरबियती जुमला है, ये कोई आतिफी जुमला नहीं है इमाम का, तरबियती जुमला है। इमाम फरमा रहे वो घर मुझे पसंद है जिसमें रबाब और सकीना रहती है। इमाम ने हुसैन ने ये नहीं फरमाया मेरा वो घर, तवज्जो फरमाइएगा, मेरा घर मुझे इसलिए पसंद है, इमाम ने ये नहीं फरमाया मुझे मेरा घर इसलिए पसंद है कि रबाब और सकीना रहती, बल्कि इमाम फरमाते वो घर मुझे पसंद है जिसमें सकीना और रबाब रहती। इसका मतलब इमाम शख्सियत की तरफ इशारा नहीं कर रहे, किरदार की तरफ इशारा कर रहे। अरे जिस घर में सकीना और रबाब का किरदार रहता है वो घर मुझे पसंद है। और ये कयामत तक के लिए इमाम का हुक्म है, चाहे वो हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, मुजफ्फरनगर हो, शामली हो, बिडौली हो, कहीं भी हो, इमाम हुसैन को आज भी वो घर पसंद है जिस घर में रबाब जैसा किरदार हो। नहीं, दूसरे लफ्जों में कहूँ, इमाम हुसैन को वो घर पसंद है जहाँ माए रबाब की तरह बच्चों की तरबियत इमाम हुसैन को वो घर पसंद है आज भी इस बस्ती में भी कि जहाँ सकीना जैसी प्यारी बच्ची रहती हो, जो हिजाब का ख्याल रखती हो, तहजीब आशूरा का ख्याल रखती हो। अब माँ बहनों की जिम्मेदारी बनती है कि अपने घर को हुसैन की पसंद का घर बनाती कि नहीं बनाती, लेकिन अगर बनाएंगी ये मेहनत मर्द नहीं करेंगे। ये नहीं फरमाया फला मर्द रहता हो, ऐसा मर्द रहता हो, ऐसा नहीं, खातून रहती हो। बात तमाम हो गई। एक जुमला और कह दूँ, अक्सर में जुमा भी होना है, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, लेकिन ये मौका बार बार नहीं आएगा। ये मौका बहुत सारी मजलिसें मर्दों की हुई है, औरतों के हिस्से की एक मजलिस है ना। इमाम हुसैन ने क्यों फरमाया वो घर पसंद है। पिडौली में भी अगर कोई ऐसा घर है जिसमें माँ रबाब का रोल अदा करे, बेटी सकीना का रोल अदा करे, तो इमाम हुसैन को ये घर पसंद है। अरे मौला, जनाबे रबाब ने क्या किया, कौन से कारनामे जनाबे रबाब और जनाबे सकीना ने किया कि इमाम हुसैन फरमा रहे हैं। और एक बात मैं ये भी अर्ज कर दूं, थोड़ा सा बैकग्राउंड बतला दूं ताकि ये भी मसला हल हो जाए। जनाबे रबाब सादात में से नहीं थी, बस आखिरी बात, जनाबे रबाब सादात में से नहीं थी, बनी हाशिम में से नहीं है, कुरैश में नहीं है, अरब भी नहीं है, मक्के की भी नहीं है, हिजाज की भी नहीं है। जनाबे रबाब हिजाज की भी नहीं है। जनाबे रबाब के वालिद का नाम है अमराउल कैस कल्बी, जो क्या थे, मसीह थे। तवज्जो फरमाइएगा, बस एक नुक्ते की तरफ इशारा करो, ज़हमत तमाम कर रहा हूँ। अमराउल कैस कल्बी जो दूसरे खलीफा के ज़माने में
ईमान ले आए, इस्लाम ले आए। और जैसे ही इस्लाम लेके आते हैं मौलाए कायनात की नज़र पड़ जाती है। इमाम हसन इमाम हुसैन से कहते हैं ज़रा इनको रोकना। अमराउल कैस किनको? जनाब रबाब के वालिद, रोको। जाते इमाम हसन शहजादे इमाम हसन इमाम हुसैन जाते रोकते हैं। इस्लाम अभी इस्लाम लाए, मसीह थे, तवज्जो फरमा रहे, मसीह थे, ईसाई थे, अभी ईमान लाए। इमाम ने कहा दोनों शहजादों से रोको। इमाम हुसैन आए, इमाम ने मुबारकबाद दी और उसके बाद फरमाते क्या पसंद करोगे, पसंद करोगे मुझसे रिश्तेदारी करना? नजरे इमाम है ना, याद रखिएगा, सादात नहीं है, बनी हाशिम नहीं है, आले रसूल नहीं है, अरब के भी नहीं है, आजम के हैं, शाम के रहने वाले हैं, मसीह हैं। इमाम फरमाते पसंद करोगे? फिर इमाम हुसैन की शादी हो जाती, आक्द हो जाता है। यानी मौलाए कायनात ने कोई खूबी देखी होगी ना, खूबी देखी होगी ना, बस बात तमाम हो गई। मुअज्जिन भी अज़ान देने के लिए आमादा हो गया। बस बात कह रहा हूँ, अरे आशूर में भी एक मसीह खातून, अगर जो थोड़ी देर पहले मसीह खातून का किरदार रबाब की सूरत में है, अरे ज़हूर के मौके पर भी जनाब लड़की से खातून की सूरत में है। अरे बस अली असगर का मसाए पड़ा है तमाम। अरे इमाम हुसैन जनाब अली असगर को हाथों पर लेकर आए। कौन अली असगर? अब्दुल्लाह रज़ी को हाथों पर लेके आए और एक मर्सिया पढ़ रहे। अरे देखो मेरा बच्चा कैसे तरफ़ा कर रहा है। अरे जानते तरफ़ा किस माना? तरफ़ा के माना सुन लीजिए और सहमत तमाम कर रहा हूँ, मजलिस खत्म हो रही है। इमाम पर यतलज़्ज़ा, अरे मछली जब पानी से निकाली जाती है, मछली जब पानी से निकाली जाती है तो मछली की 3 कंडीशन होती। जैसे पानी से निकलती है मछली में ताकत होती, मछली कभी उछलती है कभी गिरती है, जमीन से कभी उठती है कभी गिरती है, लेकिन इस कैफियत को भी तलस्सा नहीं कहते। थोड़ी देर के बाद जब मछली में ताब नहीं बाकी रहती तो मछली करवटें बदलती है, कभी दाहिनी जानिब कभी बाएं जानिब, इस कैफियत को भी तलस्सा नहीं कहते। और जब थोड़ी मुद्दत और गुजर जाती है मछली में ताब नहीं बचती तो मछली कभी दहाने को खोलती, मछली कभी दहाने को खोलती है कभी बंद करती है, इसी कैफियत को तलस्सा कहते हैं। इमाम फरमाते हैं आज़ाते यतलज़्ज़ा, अरे जनाब अली असगर कभी दहाने को